Namaste everyone. Hope all of you are well. Actually, already I have discussed lecture 1, lecture 2 and lecture 3 of states of matter. Today this will be the lecture 4. First of all, I would like to say you whatever you are studying, at least before starting a new lecture, you must get a revision concept and the whole objectives, that what the things you are going to learn in this chapter, that must be in your mind. So first of all, the chapter begins with the introduction: what is solid, what is liquid, what is gas, and their characteristics. After that we have discussed about the intermolecular forces as the London force, dispersion force, disperse force, dipole force, dipole induced force, hydrogen bonding we have studied about the thermal energy and intermolecular forces versus thermal energy. After that we have studied about the gaseous state, gas laws as Charles law, Boyle's law, Avogadro law, Gay-Lussac's law. After that we have discussed about the ideal gas equation, combined gaseous law. After that we have discussed about the density and the molar mass of gaseous substances, Dalton's law of partial pressure in mole fractions, in the terms of mole fraction. And then we have studied about these two concepts in the previous video, that was kinetic molecular theory of gases and the behavior of real gases. How do real gases deviate their behavior from the ideal gases? These things already we have covered till the previous video, and the rest thing which are left, the liquefaction of gases, liquid state, vapor pressure and viscosity, the things which are left to study. Before initiating the new things, I would like to clear this both the concept: behavior of real gases, deviation from ideal gas behavior. As you may have seen also in the previous video, that how do these gases deviate their behavior from the real gases? What are the reasons? So as we have studied in the kinetic molecular theory of gases, that at ordinary temperature and pressure, there is no force of attraction between the atoms and molecules. And the whole container is vacant, or you can say the whole container space is sufficient for the atoms and molecules. That were the main two reasons, as we have gone through the behavior of real gases also. Now first of all, I would like to clear the concept that what are the conditions under which the gases deviate from them identically. Why do gases deviate? The question was, why do gases deviate? The right answer was because they were not having intermolecular forces. As I have given you some of the examples also in the previous video, that if there is no pressure in a class, if a teacher is not so strict, so what will happen? The student can sit anywhere, wherever they like, and teacher will come, they will just teach, and because there is no pressure, no temperature, so intermolecular forces means the atoms which were attached with each other, they will be at the far places, right? The first answer was that there is no force of attraction between the molecules of gases, and second was volume of the molecules of the gases is negligibly, or you can say negligibility, small in comparison to the space occupied of the gases. Now, I want to clear one concept. As you have seen the both the gases, P versus V and PV versus P, right? Pressure and volume in the ideal gas equation. How do this hydrogen, helium, carbon monoxide, methane, what were the graph in the previous video already I have discussed. Now the main thing which I am going to teach you in this topic is, do real gases deviate from the ideal gases, and what are the reasons? How much do they deviate? As you may have seen the graph, right? This was ideal gas equation, and the real gases first they decrease and then after them they increase, as I have already shown you about the hydrogen and helium. Have you heard or not? You may have seen also this graph. I hope you all have seen this graph about the hydrogen and helium. Sorry, carbon monoxide and methane, and hydrogen and helium were straight, right?
So this was hydrogen, this was carbon monoxide, CH4 methane, right? Carbon monoxide, methane, and after then hydrogen and helium. And this was ideal gas. Wherever you can arrange, it is according to, now question is what? That if I talk about that carbon monoxide, sir, here it is carbon monoxide and here CH4. How you know these gases are here? कैसे आपको पता चला कि कितना डेविएशन हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन से? कितना? कि क्या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसमें कोई डिफरेंसेस आए हैं? Is there any differences? So how much, I just want to get an answer that how much they are being different. The reason is, then only you will get a concept that really sir is saying, yeah, this much thing is different from each other. So now first of all I would like to clear the concept that what is the pressure of the ideal gases and how much the real gases is differ. कितना अलग है कि क्योंकि आप जानते हो कि अगर इसके प्रेशर में आप देख लीजिए, ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, ये पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है, राइट? पीवी वर्सेस पी का ग्राफ था ये, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि आखिर ये लोग जो है आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ग्राफ शो नहीं करते। रियल गैस का जो ग्राफ होता है वो अलग होता है, वो बिल्कुल ना तो चार्ल्स लॉ को ऑबे करता है ना ही बॉयल्स लॉ को ऑबे करता है। तो फिर आखिर डिफर होता है तो कितना डिफर होता है? Now question comes here that how much do they differ? Are they having any values, the number of atoms, the number of molecules? So if I talk about then the P ideal, the pressure of the ideal gases, if I talk about then the pressure of real gas plus, अब जो मैं लिखने वाला हूँ that is the most important thing, as I have told you, the ideal gases differ from, or sorry, real gases differ from the ideal gases. But I questioned you here that how much? So they are a n square by n square, where a is equal to constant. ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर कितना डिफर करता है, by how much pressure they are differ. आप खुद देख लीजिए वहां पर प्रेशर जो है कम होता है, फिर एकाएक बढ़ जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आखिर क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते थे कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे कोई पूछेगा आपको व्हाट इज ए, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स और बॉडी। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है? रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में क्या डिफरेंस? आप खुद एक, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप खुद सोचो, कंपैरिजन करो लाइफ में। जो आइडियल पर्सन होते हैं उनसे हम कितना डिफरेंट? सब तो आइडियल नहीं कर सकते ना, सबको आप आइडियल नहीं बना सकते। आइडियल के लिए कुछ आइकन्स है हमारे पास, जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो लोग एक हाईलाइटेड पर्सन थे, जो एक आइकन है जिसको हम लोग आइडियल मान के आगे बढ़ते हैं, राइट? तो अगर ये आइडियल है तो उनसे जो पर्सन उनको फॉलो करता है वो कितना डिफर है? आप पूछ सकते हो ना, वो कितना डिफर है, हाउ मच दे आर डिफर फ्रॉम द आइडियल पर्सन। जैसे मान लो कि अभी के जमाने में लोग जो है किसको आइडियल मानेंगे, हु इज आइडियल? तो अभी का जो जनरेशन होता है दे आर वेरी प्रैक्टिकली बेस्ड, वो सीधा सीधी समझता है जेफ बेजोस, अगर उसको बनना है तो जेफ बेजोस। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन। क्वेश्चन है आप उससे कितना डिफर है? अगर कोई कंपैरिजन के लिए लगा है जेफ बेजोस और रतन टाटा, या जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, इस दोनों में कितना डिफर? इससे पहले बिल गेट्स थे सबसे रिचेस्ट पर्सन। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि आइडियल गैस का जो प्रेशर है और जो रियल गैस का प्रेशर है, रियल गैस के प्रेशर में अगर हम इतना ऐड कर दें तो ये हमारा आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर। मतलब आइडियल गैस के प्रेशर में आपको पता था कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, राइट? चार्ल्स लॉ में आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो आखिर यहां पर ये जो प्रेशर है वो कितना डिफर करेगा, वो चीज हमको जानना बहुत जरूरी था। आखिर अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर हम बिल गेट्स को इतना और कैश दे दे तो वो जेफ बेजोस के बराबर हो जाएगा प्रैक्टिकली नाउ इट इज ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि राइट है आपका सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस पी रियल एंड ए एन स्क्वायर बाय वी, आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो आपको मैं सीधा सीधी कहूंगा ये करेक्टेड टर्म है और ये ऑब्जर्वेशन टर्म है। आपको जो रियल गैसेस का जो प्रेशर मिला है वो रियल गैस, वो ऑब्जर्व है, और ये उसमें इतना करेक्टेड टर्म है, तब जाकर के आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो सकता है। ठीक है, आप मान भी सकते हो कि सर अगर मान लीजिए प्रेशर में होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें कि वॉल्यूम कितना घटेगा, तो जो वॉल्यूम आइडियल था उसमें से V माइनस एन भी, इतना जो है, जहां पे B आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। तो डेफिनेटली अगर प्रेशर बढ़ रहा है या प्रेशर का जो एडजस्टमेंट हो रहा है, ये जो करेक्टेड टर्म है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ करेक्टेड टर्म डेफिनेटली होगा। तो ये जो है, तो आप आ जाइए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, यही होता है। तो आप प्रेशर का जो है P रियल प्लस AN स्क्वायर बाय V, ये आपका P का वैल्यू हो गया, V का वैल्यू हो गया V माइनस NV, दैट इज इक्वल टू nRT। ये होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए मुझे। इस इक्वेशन को वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस इक्वेशन को वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो पूछा था कि आखिर ये क्यों डिफर करते हैं, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में कितना डिफर होता है और क्यों डिफर करते हैं। तो मेन रीजन यही देखा गया कि आइडियल गैसेस में जो चीज आप कांस्टेंट लेकर के करते हो, अगर प्रेशर को आप अप्लाइड करते हो तो किस तरह से उनका टेम्परेचर या वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, किसी एक को आप कांस्टेंट ले लेते हो। रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। तो कितना करेक्टेड टर्म कितना होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों में करेक्टेड टर्म आप देख सकते हैं, राइट। कि अगर आप वॉल्यूम का करेक्टेड टर्म करोगे तो यही है आपका वॉल्यूम जो है करेक्टेड टर्म में V माइनस एन बी हो जाएगा, जहां पे B कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये चीज तो बता दी, चले बहुत अच्छा किया सर आपने कि बता दें कि कितना चेंजेस होते हैं और किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो क्या अगर ये दोनों अप्लाई करेंगे तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यस सर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा, वंडरवाल कांस्टेंट जो है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर वंडरवाल इक्वेशन को आप देख रहे हैं तो n जो है आपका मोल्स ऑफ द गैसेस है, वहां पे PV इज इक्वल टू nRT में आपने देखा कि n जो है क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, और A और B क्या है, वो वंडरवाल कांस्टेंट है, और इनकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो किस तरह का गैस है उसके ऊपर में डिपेंड करेगी। अगर आप वैल्यू A का मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कि वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स विद द गैस विच इज इंडिपेंडेंट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये डिपेंड कर रहा है किस तरह का गैस है और वो गैस टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है या नहीं, राइट। चलिए अब जो है आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि आखिर ये जो डेविएशन हो रहा है आइडियल गैस बिहेवियर से, तो आप जो मेजर करते हो किस चीज में मेजर करते हो। आप पूछ सकते हो ना कि सर ये जो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस जो है वो किस चीज में बिहेवियर, इनका जो कंडीशंस है टेम्परेचर प्रेशर का, कि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है अगर आप प्रैक्टिकली लें तो नेग्लिजिबल होता है। रियल गैसेस जो है आइडियल बिहेवियर गैसेस तब शो करता है जब इसके प्रेशर को हम लोग जीरो लेते हैं। तो ये जो डेविएशन करता है उसको किस टर्म में मेजर किया जाएगा, तो उस टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, उस टर्म को हम लोग कहेंगे
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, याद रखना एक टर्म होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम लोग Z से डिनोट करेंगे। अब पूछोगे सर ये Z क्या होता है, जैसे मान लो PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो ये ZNRT होगा, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जब Z की वैल्यू 1 होगी, when Z इज इक्वल टू 1, तब जाके PV इज इक्वल टू NRT होता है। और अगर आप Z की वैल्यू निकालना है, Z इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन NRT। क्या हो जाएगा Z की वैल्यू, और कोई पूछेगा आपको व्हाट इज दिस Z, तो उसको आप बता सकते हैं ये कुछ और नहीं, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। क्या है ये? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इस चीज को आप इजीली डिराइव कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो कैसे जो वेरिएशंस हो रहे हैं कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन करने के बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स फॉर सम गैसेस, तो वहां पे आप दिखा सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, Z जब 1 के इक्वल में होगा, जब Z 1 के इक्वल में होगा तब जाकर के आइडियल गैस इक्वेशन होगी। याद रखिए, जब Z क्या होगा 1 के इक्वल में होगा तब जाकर के आइडियल गैस इक्वेशन होगा। अगर Z जो है 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? At high pressure all the gases have Z is greater than 1. These are more difficult to compress. At the intermediate pressure most gases have Z is equal to less than 1. तो याद रखना बच्चों, gases show ideal behavior when the volume occupied is large, so that the volume of the molecules can be neglected in comparison to it. सबसे पहले आपको जब ये Z1 होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन, Z इज लेस देन 1, Z इज ग्रेटर देन 1, वॉल्यूम निग्लेक्ट करना पड़ेगा। पूरा जो सिलेंडर है, पूरा जो एटम्स का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसको निग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो एक बड़ा कंटेनर में अगर 4 एटम्स गैसियस है तो उसके वॉल्यूम को आप क्या कंपैरिजन करके चलोगे? आप निग्लेक्ट करके चलोगे, राइट। अब आता है बॉयल्स पॉइंट। व्हाट इज बॉयल्स पॉइंट? आप पूछ सकते हो कि सर ये बॉयल्स पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज दिस बॉयल्स पॉइंट? तो वहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि बॉयल्स पॉइंट की बात करूं तो बिहेवियर ऑफ द गैसेस बिकम्स मोर आइडियल व्हेन द प्रेशर इज लो। अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस विल फॉलो द आइडियल गैस फ्लो? It depends upon the nature of gas and temperature. The temperature at which the real gas obey ideal gas equation. The temperature at which the real gas obey, ऐसा टेम्परेचर जो रियल गैस को ऑबे करके आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर में हो जाए तो उस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बॉयल साइंटिस्ट का नाम है, बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट कहेंगे। तो मतलब रियल गैस को इस टेम्परेचर पर ले जाएं जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस के बराबर हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप सब? सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि सर ये कितना चेंज करता है जो रियल गैसेस है आइडियल गैसेस, इस तरह का ग्राफ क्यों शो करता है? तो 2 रीजंस मैंने आपको बताया था। एक तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लेक्सिबल, और दूसरा रीजन जो आपने ढूंढा था और कहा था कि सर अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ले और पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले तो दोनों का अगर कंपैरिजन करो तो नेग्लेक्सिबल के बराबर हो। अब समझ जाओ कोई 1000 किलोग्राम का मनुष्य है, 1000 किलोग्राम, और उसके सामने 4 किलो का बच्चा है, तो दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हो? नेग्लेक्सिबल हो गया ना। 1000 किलोग्राम का जाइंट और ये 4-5 किलो का बच्चा, दोनों में बहुत ही डिफरेंस आता है, तो उसको नेग्लेक्सिबल हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ना इसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, नेग्लेक्सिबल है। सिमिलरली यहां पर जितने भी आप जो चेंजेस देख रहे हो कि आखिर वॉल्यूम जो गैसियस एटम्स का जो कंटेनर का, तो वही चेंजेस के कारण अब यहां पर क्वेश्चन होगा कि सर कितना चेंज होता है? अगर प्रेशर रियल गैस का लीजिए, प्रेशर आइडियल गैस का लीजिए, तो ये करेक्टेड टर्म है। उसके बाद वॉल्यूम में कितना चेंज होता है?
जब आप आइडियल गैस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो फिर क्या सब वैल्यू आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। Z की वैल्यू 1 होती है तो आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर होता है, 1 से बड़ा या 1 से कम होता है तो उसका कंपैरिजन हम लोग नेग्लेक्टेबल कर देते हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका जो मेन टर्म है कि Z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल। क्या होगा? दे आर वेरी फीबल। बिलो बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैसेस फर्स्ट शो डिक्रीज इन Z। आप देख रहे हैं पहले तो ये कम होता है फिर जाकर के बढ़ता है, ये डिक्रीज होता है देन द इंक्रीजेस। दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन below the boils temperature the real gases first show decrease in Z value with increasing pressure, which reaches a minimum value. On further increase in pressure the value of Z increases continuously. Above explanations will give you the, you can say that above explanation shows that at low pressure and high temperature the gases show ideal behavior. Low temperature और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैसेस जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस बिहेवियर रियल गैसेस शो करने लगते हैं। तो ये Z की वैल्यू जो है आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरह से वो फैक्टर करते हैं। यार सबसे बड़ा टॉपिक हमने सीखा कि आखिर किस तरह से वो डिफर करते हैं। अब आ जाइए किस तरह से अब Z का जो वैल्यू है जो आपने देखा था कि Z इज इक्वल टू PV बाई nRT। ये वॉल्यूम जो है वो हमारा रियल गैसेस का है जो अभी जस्ट हमने बताया आपको कि कितना कंपैरिजन करके किस तरह से अगर ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 किस तरह से वो डिफर करेंगे, राइट। अब आ जाइए कि अगर हम आइडियल गैसेस इक्वेशन के लिए निकालें तो आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो अगर हम V आइडियल निकालें तो ये क्या हो जाएगा nRT बाई P। होगा या नहीं होगा ये बताइए? होगा, डेफिनेटली होगा। अब जो है अगर Z का आप वैल्यू निकालोगे आइडियल के लिए और रियल गैसेस के लिए तो क्या होगा पता है? Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? V रियल अपॉन V आइडियल। ये इक्वेशन आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रेशियो बताती है जिसमें आप मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट वेयर द आइडियल गैसेस एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारा चीज जानने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है क्या कोई गैस अगर इस कंडीशंस को ओबे करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा? इसका आंसर आता है नॉट पॉसिबल। जितना भी अभी हमने पढ़ा है, जो ग्राफ्स देखे थे हमने कि PV वर्सेस V या P वर्सेस V का, तो उसमें आपने देखा था कि किस तरह से इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज ऑन प्रेशर किस तरह से इंक्रीज करता है। तो इन सारी चीजों से एक बात तो पता चलता है कि आखिर गैस कांट बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। और आपने पढ़ा है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने शायद पढ़ा भी होगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस,
हैव यू हर्ड दिस वर्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? ये बच्चा बच्चा आपको बता देता है कि आखिर गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाया जा सकता तो आप खुद सोचो। LPG, liquefied petroleum gas. How is possible? You are putting a deodorant on your body spray. How is it possible? कैसे ये संभव है फिर? तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो डेफिनेटली अगर आप बात करते हैं तो जितने भी गैसेस हैं वो जब लिक्विड स्टेट में कंसीडर आप करते हो तो गैसेस फेज का जो एक छोटा सा रीजन है वॉल्यूम, जिसके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक दूसरे से नजदीक आते हैं, आइसोथर्म आप कह सकते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस तरह से वो एक दूसरे से जो बहुत ही फार अपार्ट थे, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा था कंप्रेसिबल, अगर मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड द होल कंटेनर वॉल्यूम नेग्लेक्सिबल आपने कंपैरिजन किया था, फिर ये दोनों आपस में नजदीक आकर के किस तरह से गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें इस पूरे चैप्टर में ये वाला जो वर्ड है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आखिर गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप जो पढ़ोगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आप। एक होगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तीनों चीज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक फिगर 5.11 एनसीईआरटी में ग्राफ ड्रॉ किया है। मैं आप लोगों को ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, जिस ग्राफ से हमारा जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से ये जो है डिफर करते हैं और कितना डिफर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, जिस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा आखिर कितना डिफर करेगा। ये जो स्लोप बनेगा, इस स्लोप में एक P1, P2 फर्स्ट प्रेशर, P1, उसके बाद होगा हमारा P2,
सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग इस ग्राफ को जरा ध्यान से देख लीजिए। इस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर आज हम लोग पढ़ने जो वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में क्या क्या पढ़ना है। तो आप सबसे पहले इस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है कि आखिर गैस किस तरह से लिक्विड बनता है, इसको सबसे पहले साइंटिस्ट थे थॉमस एंड्रयू, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर उन्होंने लिया था और उस टेम्परेचर के बाद उन्होंने जो फाउंड किया द रियल गैसेस बिहेव इज इन द सेम मैनर एज द कार्बन डाइऑक्साइड. Andrew had noticed that at a high temperature isotherms look like that ideal gas and the gas cannot be liquefied even at a very high pressure. As the temperature is lowered, shape of the curve changes and the data shows considered the deviation from the ideal gas behavior. सबसे पहले एंड्रयू साहब ने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर लिया था और प्रेशर का जो उन्होंने दिया था, at the isotherm he had just given and he had noticed also that at a high temperature ideal gas and the gas cannot be liquefied because it is very high pressure. So remember that they have to lower the temperature. क्या करना पड़ा उनको कि हाई टेम्परेचर पर जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए टेम्परेचर को लो करना पड़ा. टेम्परेचर लो करने से कितना लो करोगे आप, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यही ग्राफ आपको बताइए आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि हर एक गैस का एक अलग अलग टेम्परेचर. तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको 73 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर पे लिया गया. जो आप ये जो ई देख रहे हो ना आप, ये 73 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर देख लीजिए यहाँ पर, ये 73 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर पर इसको लिया गया है. आप ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखना, जिस पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहली बार जब इसका टेम्परेचर मेजर किया गया था तो 30.98 डिग्री सेल्सियस. ये जो टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेल्सियस, यही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या है ये टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर. याद रखना बच्चों, इस टेम्परेचर को सबसे पहले उन्होंने मेजर किया. अब कोई पूछेगा आपको किसको कहते हैं सर क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट? क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझको यहाँ पर कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर आखिर होता क्या है? हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व. इस टेम्परेचर पर जब आप हाई करोगे तो वो गैस हो जाएगा और इस टेम्परेचर पर वो लिक्विड मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होगा. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आखिर कैसे होता है क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे हो? तो सबसे पहले आप देख लीजिए इनको V1 जो सबसे पहले वॉल्यूम फर्स्ट जो लिया गया था कितने टेम्परेचर पर लिया गया. अब देख लीजिए V1 का वैल्यू देख लीजिए, V2 का वैल्यू देख लीजिए. V2 पे आप देख सकते हैं और V1 पे आप देख लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद यहाँ पर ये PC जो लिखा है ये क्रिटिकल प्रेशर है. ये VC जो आप देख रहे हैं ई पर देख लीजिए, यही तीनों चीज मैं आपको शो करना चाहता हूं. एक ये जो पॉइंट है ई वाला पॉइंट, यहां पर आप देख लीजिए क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर. ये तीन चीज का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस चीज को नहीं समझ सकते. तो सबसे पहले व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व. ये वही हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया जा सकता है. गॉट इट? और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ टेम्परेचर इट इज गैस. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ टेम्परेचर इज, अगर आप इससे ज्यादा करोगे अबव दिस टेम्परेचर, इससे ऊपर ले जाओगे 30.98 डिग्री से ऊपर ले जाओगे, ये सब क्या है? गैसियस है. यहां पर आपको आना पड़ेगा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30.98 डिग्री सेल्सियस. द क्रिटिकल टेम्परेचर इज मस्ट फॉर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड. तो 30.98 पर आने के बाद आपको क्या पता चला? सबसे पहले मुझे ये बताइए, 30.98 के पास जैसे ही आप आए तो इसका 1 मोल ऑफ द गैसेस एज द क्रिटिकल टेम्परेचर, एक मोल जो गैस होगा ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर, वही
उसका एक वॉल्यूम कहलाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम और उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। मतलब सीधा सीधी समझ जाइए, जब कोई भी गैसेस एक ऐसे टेम्परेचर पर जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कोई भी गैसियस जब एक ऐसा टेम्परेचर उसको मिलता है जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 मोल ऑफ लिक्विड या 1 मोल ऑफ गैसेस जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। समझ में आई बात? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर एंड व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर जो P1, P2, P3 या फिर PC जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप मेजर करोगे, आप देख लीजिए V1 हमारा कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 पर, जब A पर था B, B से C, C से D, अब D से E। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये गैसेस बढ़ा है, A, B, C, D, E, अब जो है E यहाँ, उसके बाद F, फिर G, फिर H। किस तरह से यह लिक्विड टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है, या टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है, कैसे कोई गैस लिक्विफिकेशन, हमारा टॉपिक ही था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए मैंने आपको बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, ये 3 चीज का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये ग्राफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल को लिक्विफाई किया गया है, जिस पर आप डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट वॉल्यूम्स, और जिस पॉइंट पर वो लिक्विफाइड हुआ वो टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, वो प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर, और वो वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे पहले ये हर गैस का अलग अलग होगा, ये सिर्फ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया है। तो इस तरह से अलग, अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करें तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक डेटा बनाया गया है, हाइड्रोजन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर 33.2, प्रेशर जो है 12.97, वॉल्यूम जो है 0.0650। इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया का ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में जानकारी करेंगे। लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, ये 3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो भी चीज आप पढ़ते हो उस चीज का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा और वो किस चीज से रिलेटेड था। दैट इज मोस्ट कंपल्सरी। हमने जो पढ़ा था वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पढ़ा था कि आखिर आइडियल गैस और रियल गैस दोनों एक जैसे नहीं, दोनों का बिहेवियर डिफर करता है एक दूसरे से, और बिहेवियर डिफर करने से आपने ग्राफ में भी चेंजेस देखे थे, किस तरह से प्रेशर पहले डिक्रीज हुआ फिर जाकर के इंक्रीज हुआ, किस तरह से उनके ग्राफ में पहले डिक्रीज हुआ, जो आपने कोफिशिएंट फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दिया, z की वैल्यू क्या थी, उसके बाद हमने z की वैल्यूज को कंपैरिजन किया रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम के साथ, उसके बाद हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इस तरह से सबसे पहले आप लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर जो हम लोगों ने बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सरफेस टेंशन है और एक विस्कोसिटी, ये 4 टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं जिक्र करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।